السلام علیکم سائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے؟ سائیں میں اختر حسین جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں جمالی ٹریول اینڈ پراپرٹی ولاگ۔ ان دن کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، اور چلتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم نے یہ جو ان کا ریسٹ ہاؤس ہے، یہاں پہ رات گزاری، ماشاءاللہ بڑی اچھی نیند آئی، صبح ناشتہ شاشتہ کیا، فریش ہوئے، چلتے ہیں چھوٹا سا فنکشن ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کٹھا اسراج بڑا تفصیل کے ساتھ وزٹ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ پورے دن کی ایکٹیویٹی آپ کو، ولاگ ذرا تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ کٹھا اسراج کی ہسٹری آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں۔ تو چلیں صحیح، لیٹ اس گو۔ شرما صاحب روم کو لاک کر رہے ہیں۔ صحیح، نیند کیسی آئی بابا؟ انتہائی پرسکون۔ پرسکون، گڈ، چلیں صحیح۔ یہ صحیح سامنے وہ کٹاس راج کے مندر وغیرہ جو یہ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہ کمپلیکس جہاں پہ ابھی ہم باہر آ رہے ہیں، اور نیچے یہ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہال ہے اور آفس ایریا وغیرہ ہے۔ اسی حال میں وہ آج کی تقریب ہے۔ Good morning. It's wonderful to see so many vibrant and passionate young individuals gathered here to celebrate our shared commitment to unity, peace, and interfaith harmony. We are delighted to begin the official opening session of the Minority Youth Festival 2025. Let us all rise respectfully for the national anthem now. خداوند جو رحیم اور کریم اور قادر مطلق خدا ہے، آج صبح اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند ہمارے مہربان زندہ آسمانی جلالی قدوس خدا، یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو جو قدوس، مہربان اور وفادار خدا ہے، پیارے خدا، اے خداوند آج کے اس سارے فیسٹیول کے لیے، پاکستان مینارٹی یوتھ فیسٹیول کے لیے، ان کی ساری انتظامیہ کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، خداوند قدوس خدا، سالٹ آرگنائزیشن کے لیے، تمام گیسٹس کے لیے، حاضرین کے لیے جتنے یہاں پر موجود ہیں، آج کی ساری تقریب پر اے خداوند، اے قادر مطلق خدا، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے تیرے فضل اور تیری حضوری کو مانگ لیتے ہیں۔ آنے والے مہمانوں کو کثرت کی برکت دے، اور آج کا اکٹھ پیارے خداوند ملک پاکستان میں مینارٹیز کے اکٹھے ہونے سے سلامتی، برکت اور تسلی کا سبب بنے، اور اس بات کو قومیں جانے کہ خداوند اس ملک میں مینارٹیز آزادی کے ساتھ
اپنا بسر اوقات کر رہی ہیں، اور اے خداوند اس ساری تقریب کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ برکت ہے زبور 133 اس کی پہلی ورش۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ خداوند کے کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ Om Shri Ganeshaya, Om Shri Ganeshaya, Om Bhurvasvaha, Saviturvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Jo Nah Prachodayat। अर्थात जो सबका रक्षा करने वाला, सब जगत का प्राण दाता, सबके दुखों को दूर करने वाला, जो तारीफ के काबिल है, वो सिर्फ एक परमात्मा है। इस परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को हम अपनी आत्मा में धारण करें ताकि वो हमें बुरे कामों से बचाए, नेक और अच्छे काम करने की हिम्मत दे। गर्वं सदुतनं गजन्दरवदनं लंबोदरं सुंदरं पर्स्यन्दनमदगं लोकमधु भूयालो गणसतलं दन्ताघातविधारितारि रुद्रे सन्धुरिशोभाकरम् वन्दे शतसतं गणपतं सिद्धिर्दं आनन्दम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर धर्म की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है तो मैं ही अवतार लेता हूँ। वही परमात्मा, वो एक, उसी के अंश धरती पर। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में परमात्मा कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशे च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं भूमि युगे युगे। अर्थात साधुओं और भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और फिर दोबारा से एक नए धर्म की स्थापना करने मैं ही एक नए रूप के साथ धरती पर प्रकट होता हूँ। इंसानों और माइनॉरिटी की खैर के लिए प्रेयर अरदास छोटी सी अरदास इलूकार सतनाम करतापुर अरदास श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी पातशाह श्री प्रथम भगवती सिंह के गुरु नानक की त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हराय श्री हरकृष्ण ध्याये जिस जट सब तुम जाए तेग बहादुर सिंह दिए करनो नित आवे थाई सब थाई होए सहाय दसवीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसवीं पातशाही दी जोर तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी दी जोर आप जी दास वालो इंसाना दी खैर मानाड़ी दी खैर सारी जग सारी इंसानियत दी खैर सारे जग ते अपना मेहर परिया हाथ रखो सही प्यारे में जिन्हें जत नाम चतियावे नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे से बंदा कला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की Good morning. Namaste. Thank you. Ladies and gentlemen, good morning. And on behalf of SOIL, I welcome you with the peace and blessings and a heartfelt welcome to the Pakistan Minority Youth Festival.
It fills my heart with joy to stand before you today, not just to celebrate a festival, but to honor a vision that is old but yet unfinished, a vision that began at the birth of Pakistan, when our founder, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, stood before the Constituent Assembly and declared that this is a new nation where every citizen, regardless of their religion, caste or creed, would be equal. The dream was bold, it was rare, and it still burns in many of our hearts today. Pakistan is a land blessed with diversity of languages, cultures, traditions and faith. From the Sufi shrines of Sindh to the temples of Tharpatr, from the churches of Lahore to the Gurdwaras of Nankana Sahib, we are a mosaic of communities who have lived side by side for centuries. And yet, we must be honest. This mosaic has too often been fractured. Too many of our young people from religious minorities grow up hearing that we are less than, and they must shrink themselves to survive. Too many dreams have been dimmed by the fear of exclusion and by silence. But not today, not here. The festival is a declaration that we are here, we belong, and we are ready to lead. In a world that is often only hearing about Pakistan going through a lens of conflict, extremism or intolerance, gathering like this. नाम कीशा भवानी है और मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम नमल यूनिवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी में आज मैं हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारा जो यूथ इंटरफेथ डायलॉग है वो एक बहुत ही दिलचस्प और कदीमी मुकाम कटास राज में कंडक्ट किया जा रहा है। कटास राज मंदिर पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब के ज़िला चकवाल में मौजूद है। ये मंदिरों का एक पुराना और मुकद्दस मजमुआ है जो हिंदू धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर एक कदीमी तालाब भी है जिसके बारे में माना जाता है कि वो भगवान शिव के आंसुओं से बना था। कटास राज का जिक्र महाभारत के दौर में भी था, इसीलिए कटास राज रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ साथ हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को भी ऑन करता है। आज हम सब यहाँ पर हैं क्योंकि हम सब ये बात समझते हैं कि रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत खूबसूरत है। दुनिया में कई किस्म के रिलीजन्स और संस्कृतियाँ हैं, मगर सबका मकसद एक ही है, और वो ये है कि हम सबसे पहले खुद को समझें और फिर दूसरों को समझने की कोशिश करें। यूथ इंटरफेथ डायलॉग का मतलब है कि हम अपने अपने रिलीजन्स और संस्कृतियों को समझकर दूसरों की सोच को इज्जत दें और उनको समझने की कोशिश करें। और आजकल के दौर में जहाँ वक्त इतनी जल्दी गुजर आया और दुनिया इतनी जल्दी बदल रही है, वहाँ हमें इसकी ज़रूरत और ज़्यादा महसूस होती है कि हमें अपनी सोच को ब्रॉड करना चाहिए और दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सलाम। मैं तमाम मुशरान साहिबान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इधर बोलने का मौका दिया। जिस तरह के इंटरफेथ की बात हो रही, यूथ इंटरफेथ, प्रोग्राम्स बहुत होते हैं लेकिन यूथ इंटरफेथ पर कभी भी प्रोग्राम नहीं हुआ। यूथ जो है ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक पावर है, ठीक है। जब यूथ चेंज करेगा तो हर चीज़ यूथ चेंज कर सकता है। तो जिस तरह के मज़हब के बारे में मैं बताऊं तो हमारे रिलीजियस में भी यूथ का एक अहम रोल है, ठीक है। हमारे गुरु साहिब के जो साहिबजादे थे उन्होंने एक शहीदी जो है वो दी थी, और आज अगर सिखिज्म बचा हुआ है तो वो भी उस बच्चों की वजह से बचा जिन्होंने शहीदी दी हुई थी। तो जिस तरह साथ ने ये प्रोग्राम अरेंज किया और यूथ डायलॉग्स रखे, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है और इससे हम अपने मज़हब के बारे में और लोगों को भी समझाएंगे कि हमारे मज़हब क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। हम भी कुछ सीखेंगे। आज जिस मंदिर में हम खड़े हैं या आस्थान में खड़े हैं, तो यकीनन जाने मुझे बहुत खुशी हुई। इसमें हमारे सिख बरादरी के भाई हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तमाम आए हुए इस मंदिर को, क्योंकि मैं खुद आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, हकीकी में हमने ये कभी नहीं देखी कटास राज मंदिर किधर है किधर नहीं है। तो मैं ADB बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे गुरुद्वारों को, हमारे मंदिरों को, हमारी जितनी भी रिलीजियस की जगह है उनको उसी तरह रखा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया। अगर मैं रिसेंट की बात करूँ तो
دیکھو میں نے پچھلے 2-3 دن پہلے بھی اپنے یوتھ سے ریکویسٹ کی تھی میڈیا کے اوپر کہ ہمارے جتنے بھی اقلیتی برادری کی یوتھ ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی مسئلے آئے تھے اور انڈیا پہ، تو ادھر کے ہمارے جو پاکستانی یوتھ ہے یا مسلم کمیونٹی کی یوتھ ہے انہیں چھوٹی سی نگیٹیو ہوتی ہے کہ یار آپ اپنے بھگوان سے پوچھیں، آپ اپنے فلاں سے پوچھیں کہ ہم اس طرح کریں کس طرح. تو میرے اپنے پاکستان کی عوام سے اور اپنی وہ جو چھوٹے سوچ والی یوتھ ہے ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے اس ڈائس سے کہ یار آپ ذرا پڑھیں مذہب کو. دیکھو مذہب نے کبھی ڈویژن نہیں کی، ٹھیک ہے جی، ڈویژن اگر ہوئی ہے تو ہم نے کی ہوئی ہے. مذہب نہیں کر رہا، تمام مذاہب جو ہے وہ انسانیت کا درس دے رہا ہے. تو میرے اپنی تمام پاکستانی یوتھ سے یہ ریکویسٹ ہے اور خاص کر مائنارٹی سے کہ جو بھی انڈیا کی طرف سے بیان آتا ہے تو یار آپ لوگ اس میں رول ادا کریں، ان کو سوشل میڈیا پہ جو ہے مضبوط اس کی مذمت کریں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب ہم ہوں گے یوتھ ہوگا تو پاکستان ہوگا، ٹھیک ہے، جب یوتھ نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ سب کا ہم آپ کو مشکور ہیں کہ آپ نے اتنا سندر پروگرام سجایا اور آج آپ نے ہمیں اپنا دل بولنے کا موقع دیا ہے. ہماری یوتھ ہمارا مستقبل ہے اور عین ممکن ہے کہ کل اس جگہ جہاں میں آج کھڑا ہوں یہ بات کر رہا ہوں آپ میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوں. عین ممکن ہے کہ آپ میں سے ہی کوئی بچہ بچی بڑے ہو کر ڈپٹی کمشنر چکوال لگے گا. اس لیے آپ کو مشکور ہوئی کہ آپ نے ایک یونیک تھیم اٹھایا اور اس یوتھ پہ اکٹھا کیا. باقی جو مہمان تشریف لائے ہیں میں سب کو ویلکم بھی کہتا ہوں. جناب رشی شرما صاحب، پنڈت راکیش صاحب، سردار ہومی سنگھ، مس سمت جاوید صاحبہ، بشپ ڈاکٹر امانت مسیح صاحب اور جن کے نام میں نہیں لے پا رہا، ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں اور سب کے مشکور ہیں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے اور اس وینیو کو رونق بخشی. جس پہلی بات تو یہ کہ ہم نے رات کو بچوں کے ساتھ شیئر کیا کہ دس از جسٹ دی بگننگ. ہم سر کرتارپور جا رہے ہیں نیکسٹ. Badshai Mosque, sir. Okay? But then we want to bring everyone to a church. So this is just the beginning. So आपने जो बात की है, we will be following up on that और वो already हमारे plan में शामिल है. So thank you for sharing all of that. جی اچھا، کرتارپور آپ اگلا پروگرام کریں گے. اتفاق سے آئی ایم ڈپٹی سیکرٹری ایڈمنسٹریشن پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کرتارپور صاحب. اتفاق سے ہم آپ کو ویلکم کریں گے. جب آپ تشریف لائیں ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے. آپ کو کمپلیٹ اپرچونیٹی دیں گے وہاں رہنے کی، کھانے پینے کی، بات چیت کرنے کی. اور کرتارپور صاحب ایک ایسا استھان ہے، ایک ایسی مذہبی عبادتگاہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑی کسی بھی مذہب کی عبادتگاہ ہے. 875 ایکڑ پر ہوئی ہے اور ابھی جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک دنیا کی سب سے بڑی مذہبی عبادتگاہ چل رہی ہے وہ بودھ ہندو ٹیمپل ہے کمبوڈیا میں. اور ہم ان کو چیلنج کیا ہوا ہے، ہمارا کیس چل رہا ہے ان کے ساتھ. اچھا، اور انشاءاللہ بھی ون کیونکہ وہ 402 ایکڑ پر ہوئی ہے اور ہم 875 ایکڑ پر ہوئی ہے. دوسرا، کرتارپور صاحب ایک اس سے خوبصورت مثال انٹرفیتھ ہارمنی کو ایگزسٹنس کی نہیں ملے گی دنیا میں. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پوری دنیا کا فٹ پرنٹ ہے. رمیش اروڑا صاحب، پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پربند کمیٹی، صوبائی وزیر مذہبی اقلیتیں اور انسانی حقوق پنجاب، میرے دوست ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز جناب سیف اللہ کوکر صاحب، میرے بہت اچھے دوست، اور اس پوری محفل کو سجانے میں جس کا سب سے بڑا رول ہے
हम रात से उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके व्यूज़, तो साल्ट का जो तसव्वुर है वो सुनने में भले आपको नमक Professor, thank you very much, and taking the opportunity. इसके बाद जब हम शीट लेंगे तो करेंगे. Sir, please, I'd like to take this honor to invite our dear friend, our minister. आज जो अपनी महफिल सजाई है, here I can see people from different faith groups, Hindu, Sikh, Christian, there must be high unity, there must be Parsi, there must be other faiths as well. So I really appreciate it. और आपने जो बहुत अच्छी रवायत रखी कि आपने राहुल गैविट में हो गया और है इस्लामाबाद और लाहौर आपने इवेंट कंडक्ट किया कटार साल में आके and कटार साल and old historic significance particularly जिसमें पिछली जैसा आप अपनी तकरीर में बता रहे थे करवा रहे थे you will continue it not only here in Qatar Sahib, but you will do Qatar Sahib, then church, Bachimos, and some other hospitals. So much more, much appreciated और बहुत सारे दुआएं आपके हैं. यहाँ पर मौजूद सर पोखर साहब एडिशनल सेक्रेटरी से आए एक्जीक्यूटिव ट्रस्ट ऑफ द बोर्ड, कृष्ण शर्मा साहब पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के उम्मीदवार हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. क्योंकि इन्होंने चाप संभाला है हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का, तो हम देख रहे हैं कि he has tried to turn around this institution so that ये institution instrumental है to bring the change and to bring it to be harmony. So much of praise for you. Celestine Shah, thank you very much for being here. Bishop Aman Sahab, Madam Super Javed Sahab, colleagues from the Mr. Kamran Salim Saab. सर ऐसे भी I will request Mr. Umar Hayat to please come forward to the stage. अब मैं जनाब अपने आज के मिनिस्टर साहब जनाब रमेश सिंह रावत साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोटेस्ट जी को सुबह बनाएंगे. थैंक यू सो मच मेरे पर डेलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. और सबसे बड़ी जो बात है मैं यही बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ. हमारी जिस तरह सिक्योरिटी की गई है और तमाम इलाके को सील किया गया, मैं सिक्योरिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत शुक्रिया. Sir, this will remind you that you were part of एल्बर्ट साहब को गिला मैं करता हूँ. मुझे पहले ये था कितने लोगों को लगता है एल्बर्ट साहब बुजुर्ग हो गए हैं, कितने लोगों को लगता है एल्बर्ट साहब स्टिल यंग. रेस योर हैंड से. तो एल्बर्ट साहब आपने दोबारा नहीं कहना हम बुजुर्ग हो गए, यू आर स्टिल यंग. Another 20 years we are still young.
और ये उसके छोटे दाने, ये बड़े दाने, ये हमारी वो पूजा करने के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। क्या जी? चंदन तो होता नहीं है वो जो देवी दो और संदन। तो ये आप मंगवाते कहाँ से सारा इंडिया से मंगवाते हैं? सर ये बिल्कुल वहाँ से मंगवा लेते हैं, या दुबई से मंगवा लेते हैं। नहीं तो आप ऐसे मेरा आपको ये होएगा, देखे ना आपके पास इतनी यूथ मौजूद है, बिल्कुल आप कोशिश करें ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, लोकल प्रोडक्शन करें। बहुत सारी चीज़ें अब ये धूप के अंदर जो डलता है तो ये लोगों को एम्पावर करें, जो हमारे लोग हैं उनको छोटी मोटी फाइनेंशियल असिस्टेंस को ट्रेनिंग दे के कि लोग यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन करें। देखिए इसमें 8 मिलियन से 10 मिलियन हिंदू पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो वही वाई वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट कि हम उधर से मंगवाएं, उधर से। हम यहाँ पे भी ये कर सकते हैं। तो मेरा आपको ये होगा कि आप यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन करें एंड देन आप मुख्तलिफ जगह पे इसकी स्टॉल लगाएं। और हमारे अब तो हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई जो है ना वो भी, उनको भी ये है कि बहुत सारी चीज़ें वो भी चाहते हैं कि आप मेरे में से मिले। तो आप इसकी प्रोडक्शन, मैं कहूँगा पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन करें। आप ये देखें ना ये कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पे नहीं होती। बिल्कुल इसमें जो सपोर्ट आपको हमारे उससे चाहिए आप हमें बताएं, हम आपको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देते हैं, लोगों को ट्रेन करें ताकि लोग इसकी प्रोडक्शन खुद करें। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये क्या है? ज्वेलरी है कृष्णा जी की। 3000 की है सर। मैं मुझे वो प्लम होता है रेशमा। अच्छा अच्छा 10 क्रीम केक नहीं होता और अच्छा नहीं पता। अच्छा यार मैं ने कहा कि जो प्लम केक जी ओवर टू यू। उस प्रोग्राम उस पैगाम के साथ जुड़े और वो पैगाम मोहब्बत का था, सब्र का था, जो इस वक्त उस पैगाम को हमें आम करना है। जो पैगाम था पेशेंस का था, मोहब्बत का था। हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि जो पुराने अहदनामा के जो 10 अहकाम है ना, वो सारे अहकाम जो उनसे है ना वो एक ही हुक्म में वो जम हो जाते हैं। और वो हुक्म ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखो, खुदावन से मोहब्बत रखो और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत। थैंक यू। एंड सर दिस इज समथिंग ये हम आपके साथ भी भेजेंगे। दिस इज कॉल्ड हॉट क्रॉस बन। अच्छा और ये ईस्टर की और ख़ासतौर पे गुड फ्राइडे की एक स्पेशलिटी है। ठीक है जी, बहुत कम बनते हैं पाकिस्तान में, हम लोग इसको ख़ासतौर पे बनवाते हैं। सो ये सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हमने यहाँ पे मंगवाए हैं एंड वी विल सेंड सम विद यू एज वेल, बट दिस इज समथिंग स्पेशल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया माशाल्लाह, अच्छा रहा, काफ़ी देर फंक्शन चलता रहा। जमाली साहब जी सही, जिंदाबाद। जमाली साहब, डॉक्टर कैसा वसंत रहा? कुमार सर, जबरदस्त फंक्शन, ठीक रहा जबरदस्त सर, माशाल्लाह सही ज़बरदस्त रहा। और बड़ा मज़ा आया जमाली साहब के साथ, रात भी गपशप हुई और आज भी हुई। ऐं असां जमाली साहब जे गोड़ जो पानी भी पीतो आहे, बदीन जो मानी कौन खा रही? मानी तो सर मां हिकिड़ो साल पूरो रहियो आहे न। वही ना सही कहते हैं सही, पानी पिलाया, मैं कहा शायद रोटी खाना भी भी खाया, खिलाई, पूरा खाना एक भी साल, खिलाया ना। पूरा एक साल। क्या पता जमालियों ने खाली पानी पे रखा हो। जमाली जो है ना जीदार हैं, शुक्रिया शुक्रिया, और ज़बरदस्त मेहमान नवाज। बड़ी मेहरबानी थी। सोहेल खान जमाली, अशरफ जमाली और अख्तर जमाली, अख्तर जमाली और अपने नहीं, रफीक मैं खान हूँ। जमाली, ये सारे ही बहुत ही अच्छे भाई हैं अभी सब। किधर जा रहे हैं? हम सर भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए जा रहे हैं, अच्छा क्योंकि भूख खाना लगी है। भूख लगी है, हाँ, क्योंकि इम्यूनिटी कम भूख हो लगी गई है। है। कामरान भाई आए ना। चले सही चलते हैं, आपको भोजन करवाते हैं। हाँ जी, हाँ लंगर खाने आ चुके हैं। जो मेहमान थे उन्होंने तो खाना खा लिया है। जी सही, क्या सर भोजन करने के लिए आए हैं? ये भोजन करने के लिए आए हैं? हाँ जी। सबके लिए भोजन है अच्छा और यहाँ मागे के घर पे सबके लिए भोजन है। और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो हमारे अभी हमारे फिगर मिनिस्टर आ रहे हैं, अच्छा, खाना खान से। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, एक मिनिस्टर गए, अभी दूसरे आ रहे हैं। कोहिस्तानी साहब फेडरल मिनिस्टर, उनको वेलकम किया जा रहा है।
खाना खा लिया है, लंगर कर लिया है, भोजन कर लिया है, तो अभी थोड़ा कमरे में चलते हैं, रेस्ट करते हैं आधा पौना घंटा, उसके बाद प्रोग्राम अटेंड करते हैं, फिर चलते हैं। सही। कहा जाता है कि कुछ मकामात सिर्फ जगह नहीं होती, वो वक्त के सफ़ात में छुपी हुई कहानियाँ होती हैं। ऐसी कहानियाँ जो ज़मीन पर लिखी जाती हैं और आसमान तक सुनाई देती हैं। आज हम जा रहे हैं कि ऐसे ही मकाम की तरफ जहाँ आंसुओं से झील बनी, जहाँ रूहानियत, मज़हब और इंसानियत के नकोश बेक वक्त मिलते हैं, कटास राज। आँख का आंसू, ज़मीन का नगीना। कटास राज का नाम संस्कृत के लफ्ज़ कताशा से निकला है, जिसका मतलब है आँख का आंसू या नज़र करम। ये इलाका चकवाल के पहाड़ों में वाक़ है और सदियों से हिंदू, बुद्ध, सिख और मकामी लोगों के लिए एक मुक़द्दस मकाम रहा है। रिवायात के मुताबिक जब देवी सती ने खुद को हवन में कुर्बान किया तो भगवान शिव गम से निढाल हो गए। उनकी आंखों से दो आंसू टपके, एक आंसू भारत में गिरा और दूसरा यहाँ, जिसने जन्म दिया कटास राज के मुक़द्दस तालाब को। ये तालाब आज भी मौजूद है, जिसे हिंदू अकीदे में निहायत मुक़द्दस समझा जाता है। कहा जाता है कि इसमें जो गुस्ल करता है उसके गुनाह धुल जाते हैं। कटास में मौजूद 7 कदीम मंदिर गुप्त और हिंदू शाही दौर की निशानियां हैं। यहाँ की दीवारें, सुतून और पत्थर आज भी 1000 साल पुरानी इबादतों की गवाही देते हैं। यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख मत और बुद्ध मत की बाक़ियात भी पाई गई है, जो इस जगह को मजहबी और हम आंगी का एक अनमोल नमूना बनाती हैं। कटास राज के करीब पथरीले पहाड़ों में छुपी हुई पांडु गारें, जी हाँ, महाभारत के मशहूर किरदार पांडु भाइयों की यादगार। कहा जाता है कि जब पांडु खानदान को 12 साल का बनवास दिया गया तो कुछ वक्त के लिए वो इन गारों में मुकीम रहे। आज जब इन गारों के अंदर जाया जाए तो ठंडक, खामोशी और तारीकी के बावजूद ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त वहां थम गया हो। क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि कभी यहाँ अर्जुन, भीष्म और युधिष्ठिर बैठे होंगे? क्या द्रौपदी ने इन ही गारों में इबादत की होगी? ऐसा लगता है जैसे इन गारों की सांसों में आज भी वो लम्हे कैद हैं। कटास राज के पहाड़ों के दामन में एक और पुराना राज छुपा है। ये एक बुद्ध स्तूपा है, जिसे बुद्ध मत के पैरोकारों ने अमन, ध्यान और ज्ञान की अलामत के तौर पर तामीर किया था। बुद्ध मत के मानने वाले इस चिंतन की जगह समझते हैं या भिक्षु बैठकर ध्यान लगाते, अंदरूनी सुकून को तलाश करते और दुनियावी ख्वाहिशात को खैराबाद कहते। आज भी जब आप वहाँ बैठे होते हैं तो हवा की हल्की सी सरगोशी, परिंदों की चहचहाट और पत्थरों की खामोशी एक रूहानी पैगाम देती है कि असल अमन अंदर होता है। कटास राज सिर्फ एक मजहबी मकाम नहीं, ये पाकिस्तान की तहजीब विरासत का हिस्सा है, जिसमें मुख्तलिफ अकायद, नज़रियात और सकाफती सदियों तक साथ रहे हैं। यहाँ हिंदू भगवानों की याद है, या बुद्ध बख्शुओं का सुकून है, या पांडवों की यादें हैं, और आज यहाँ हमारा फ़ख्र। यही तो है हमारी ज़मीन, जहाँ पर हर ईंट, हर पत्थर एक मुकम्मल दास्तान है। अगर आपको कटास राज की ये रूहानी तारीखी सैर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اسی کے ساتھ آج کا یہ جو سفر تھا دوسرے دن کا، اس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور چلتے ہیں واپس اپنی منزل اسلام آباد. کیا پروگرام ہوا؟ پھر ٹور لیا اور مزہ آیا. گڈ. یہ چابی کسی کے حوالے کریں روم کی، ورنہ کہیں گے رات رہے اور چابی ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے نا سائیں بابا، مزہ آیا، فرسٹ کلاس، بہترین. اور ابھی واپس چلتے ہیں اپنی منزل کو. کٹاس راج آپ نے دیکھ لیا. اگر مزہ آیا ہو تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجیے گا، نہ مزہ آیا ہو تو معذرت.